Good morning, everyone, once again. And today we'll try to finish up this unit. And in the last class, we have discussed the public responses to externalities that we have started, and we have discussed the Pigouvian tax. Now, today we are supposed to discuss the subsidy, and then we'll proceed with the positive externalities to you. So these are the taxes and subsidies in case of negative externalities. And that is the Pigouvian tax case we have discussed in our last class. Hello, students, am I audible? बेटे मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम करेंगे सब्सिडी का केस एंड we will try and see what can be done, how the subsidies helps in what do you call it, in removing the externalities, how the subsidies helps in removing externalities. Let's try and see that. I have to redraw the curve once again, and we'll look into the logic after that. Now today's topic is subsidies. Subsidies means what? That means you are paying to someone for mitigation of some expenses, and that's what the subsidy means. कि आपका मतलब है गवर्नमेंट, यहाँ से कि गवर्नमेंट इज पेइंग समवन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. दैट्स व्हाट द सब्सिडी इज इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर केस. अब यहाँ पर ब्रैट इज पोल्यूटर, ही इज पोल्यूटिंग द स्ट्रीम and he is producing the output at the where the private cost equals its marginal benefit, which is not socially desirable output, जो कि socially desirable output नहीं है. तो उस केस में क्या है कि जो क्या कहते हैं कि ये है गवर्नमेंट ब्रैट को सब्सिडी के थ्रू कन्विंस करेगी कि फॉर ईच यूनिट द brat do not produce, on that each unit he will be given the subsidy. उसको सब्सिडी दी जाएगी. अब कैसे? अब सवाल यह है किस लेवल आउटपुट तक अगर ब्रैट सब्सिडी एक्सेप्ट करता है, ना प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी एक्सेप्ट करता है, तो किस लेवल तक उसे वो सब्सिडी एक्सेप्ट करना बेनिफिशियल है और किस लेवल के बाद वो सब्सिडी एक्सेप्ट करना उसे दैट विल टर्न इनटू द लॉसेस. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी टुडे. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स. यस सर. क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये मतलब है किसका? सब्सिडी का. अब हम देखते हैं सब्सिडी के केस में कि सब्सिडी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा. तो डायग्राम मैं फिर से वैसे ही बना रहा हूँ जैसे हमने पहले बनाया था, उसी डायग्राम को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ. वी विल जस्ट बी लुकिंग इनटू द whatever the nitty-gritties are there for that thing. Implication of the same graphically. We'll try to see the implication of the same graphically. Well, this is the origin point. This is the benefit. This is the, either you can write price or cost, anything. Just write. Yes, so this is quantity produced. This is the marginal benefit curve.
This is the marginal benefit curve. This is the marginal benefit curve to the BRAT, and this is the marginal private cost. This as a marginal private cost. Now this is the point E0. So BRAT is producing this much initially when suppose government has not intervened so far. So BRAT is producing at this point. Now let's draw the marginal damage curve. How much marginal damage is being you know caused to what do you call it, BRAT, sorry, LISA. How much marginal damage is being caused to LISA by the pollution that has been done by the BRAT, because BRAT is a polluter over here. So if we add this marginal damage to this marginal private cost, we'll get the marginal social cost. How much cost is being imposed on the society. So this would be something like this, and it would be something like this. The curve will move somewhat like this. So this is the marginal social cost, which is nothing but the sum of marginal private cost and the marginal damage. So as per this point, the socially desirable output is this much. Let me mark it as the Q star. This is the Q star output, which is socially desirable. Now the problem is this: how to convince the BRAT not to produce at this point and to produce at this point E1. That means the point is how the government can convince the BRAT that he should not produce at Q0, and as per the socially desirable output, he should produce at Q star. Now this is the problem, and the government tries to solve it out through the subsidies by offering subsidy to the BRAT. Now, will the subsidy going to convince the BRAT that yes, I shouldn't produce at Q0 and I should produce at Q star? That is what the basic question is, whether the BRAT will be convinced with this offer or not. Now how to go with that? Look, BRAT would be happy if he will receive the sum more than the loss of profit that he has to forego. Yes or no? जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था कि सपोज करो ब्रैट अगर E0 से E1 पॉइंट पर आता है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स E0 से E1 पॉइंट पर जब ब्रैट आएगा तो दैट शोज that this much is the loss that is being, this much is the profit that a BRAT will lose if he move from Q0 to Q star, isn't it? Hello students, did you get it? Hello students, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। तो क्या ये बात समझ में आई आपको कि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने क्या देखा कि E0 से E1 पर ब्रैट आना चाह रहा है. अगर E0 से E1 पर ब्रैट आ रहा है तो दिस इज द लॉस इन इट्स प्रॉफिट. दिस मच प्रॉफिट इज बीइंग foregone by the, sacrificed by the BRAT. Now the question is why the BRAT will do so, why he will agree to forego or sacrifice this much profit.
he will sacrifice only in case if somebody compensate him for this, and that compensation is being done by the government through subsidy. Is that okay? Hello, students? अब सपोज करो Yes, sir. ये नॉट टू प्रोड्यूस दैट, सपोज करो द गवर्नमेंट कन्विंसेस द ब्रैट दैट फॉर ईच यूनिट if you not produce each unit you do not produce, you are going to receive this much sum, अब कोई भी यूनिट जो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ब्रैट को इतना सम मिलेगा, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक, सर सब्सिडी का अमाउंट कैसा रहेगा? सब्सिडी का अमाउंट उतना ही रहेगा जो कि टैक्स का अमाउंट था, यानी कि गवर्नमेंट अब उससे चार्ज नहीं कर रही है, अब गवर्नमेंट उसको दूसरी तरह का ऑफर दे रही है, क्या कि गवर्नमेंट उसे कह रही है यू शुड नॉट प्रोड्यूस, फॉर ईच यूनिट यू डू नॉट प्रोड्यूस, आई एम गोना गिव यू दिस मच सब्सिडी. सो दिस वुड बी द probable shape if we provide the subsidy to that. So this is MSC plus subsidy, sorry, MPC plus subsidy, not the tax over here. What happened? Hold on, something wrong. Okay, let's start once again. So this would be marginal private cost plus subsidy. Now you can clearly see that if the government offers him subsidy, then if he produces at Q0, अगर वो Q0 पर प्रोड्यूस कर रहा है, एक मिनट है, तो Q0 क्वांटिटी पर उसको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो रहा, जबकि वो Q0 क्वांटिटी प्रोड्यूस ना करके इतनी सब्सिडी को गेन कर सकता है कि गवर्नमेंट अगर वो ना प्रोड्यूस करे तो गवर्नमेंट उसे इतनी सब्सिडी देगी, जबकि ये जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा. इस पॉइंट पर भी ऐसा है कि वो इतना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना प्रॉफिट कमा पा रहा है जब वो प्रोड्यूस कर रहा है. गवर्नमेंट कह रही है तुम प्रोड्यूस मत करो, मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगी, यानी कि जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको 2 रुपये अर्निंग हो रही है, बट गवर्नमेंट उसे कह रही है कि तुम प्रोड्यूस मत करो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगी इस यूनिट को प्रोड्यूस ना करने के. तो ऑब्वियस बात है कि जो ब्रैट होगा वो कन्विंस हो जाएगा कि प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं और प्रोडक्शन ना करने के मुझे 5 रुपये मिल रहे हैं, तो ही इज एनी हाउ बींग बेनिफिटेड बाय ₹3, इजंट इट? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है ना? तो जो सब्सिडी मिल रही है वो प्रोड्यूस ना करने के लिए मिल रही है, प्रोड्यूस करने के लिए सब्सिडी नहीं मिल रही. यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि जो सब्सिडी मिल रही है वो प्रोड्यूस ना करने के लिए मिल रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये सब्सिडी होगी. तो ऐसी फॉर एट ईच यूनिट विच द ब्रैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग till point Q star, the amount of subsidy offered by the government is more than what the benefit, whatever the benefit or the profit, the what do you call it, the brat is being earning, तो उसके प्रॉफिट से ज़्यादा सब्सिडी थी, इसलिए ब्रैट ने इस पॉइंट तक सब्सिडी एक्सेप्ट की. अब सवाल यह है क्या इसके बाद भी प्रोडक्शन ना करने के लिए ब्रैट सब्सिडी एक्सेप्ट करेगा? द आंसर इज नो. The brat will not be willing to accept the subsidy to at any point to the left of this Q star. Why? The reason being, suppose if he produces he will earn this much profit. Let me mark it. अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज करो अगर वो Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो उसे प्रॉफिट होता है यहाँ से A से लेकर B पॉइंट तक, और अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडी दे रही है सिर्फ ये C पॉइंट तक. सो दैट मीन्स CB इज स्मॉलर देन द AB, इजंट इट? हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या ये समझ में आया है आप लोगों को? हेलो
स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? सर रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अब सवाल है, यहाँ तक तो सब्सिडी उसने एक्सेप्ट की, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सब्सिडी ऑफर्ड टू द ब्रैट वॉज मोर देन द प्रॉफिट दैट ही विल अर्न। भाई सब्सिडी किस चीज़ के लिए मिल रही है? प्रोडक्शन ना करने के लिए। और अगर प्रोडक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट होगा, और प्रोडक्शन नहीं करता तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देगी। तो ब्रैट को ये डिसीजन लेना है कि भाई मैं कितना प्रोडक्शन करने पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर जो प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्शन करने से, जो प्रॉफिट हो रहा है वो मोर देन द सब्सिडी है, वो सब्सिडी से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है वो सब्सिडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वी विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस, इजंट इट? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। हु इज दिस? सर मुस्तफिज। मुस्तफिज समझ आया? यस सर। अब ऐसे ही हमें अब यानी कि जो क्यू स्टार पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्यू स्टार पॉइंट है, क्यू जीरो से क्यू स्टार के बीच में जो प्रॉफिट, प्रोबेबल या पॉसिबल प्रॉफिट है that could have been earned by the Brad is smaller than the subsidy that he will receive for not producing. That means the profit he enjoys by producing is smaller than the subsidy that he is going to receive for not producing that quantity, isn't it? Hello? Hello? Mustafa, did you get it? Hello? Yes, sir. Now the same logic applies to the left side of this Q star. अब Q star के लेफ्ट में भी क्या है कि Q star के लेफ्ट में क्या है कि ब्रैट जो होगा वो इसी तरह से डिसीजन लेगा कि अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और प्रोड्यूस ना करने के बदले में मुझे कितनी सब्सिडी मिल रही है। इज दैट ओके? हेलो? ओके सर। ठीक है, तो इसी तरह से वो डिसीजन लेगा। तो इस तरह से वो डिसीजन लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टू द लेफ्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज करो वो Q2 पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है AB। भाई उसका प्रॉफिट क्या है या बेनिफिट क्या है? मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। ब्रैट का यही तो प्रॉफिट है कि मार्जिनल बेनिफिट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है AB रुपीज़ प्रोडक्शन करने पर। अब सब्सिडी उसे मिलेगी प्रोडक्शन ना करने की। अगर वो प्रोडक्शन ना करे तो ब्रैट को कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ CB। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ब्रैट को कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ CB। हेलो? यस सर। ठीक है, विच इज लेस देन द AB। तो इसका मतलब ब्रैट विल नॉट एक्सेप्ट सब्सिडी टू द लेफ्ट ऑफ Q स्टार एंड ही विल बी हैप्पी at producing Q star only, because till this point he is sacrificing this much output, and by reducing output by this much quantity only he will be receiving benefits from the subsidy. That means subsidy is beneficial for him. And to the left of this the brat is going to bear the losses if he accepts the subsidy, isn't it? कि ब्रैट को क्या होगा? लॉसेज होंगे अगर वो सब्सिडी को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। इज दैट ओके? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इतना आर्गुमेंट समझ में आया है? हेलो? तो 2 मिनट वेट कीजिए, अभी शुरू करते हैं फिर से। हेलो स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। चलिए इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं और अब हम देखेंगे कि सब्सिडी का अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, कि कितनी अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी। देखो ये तो हमने लॉजिक समझा कि वेदर द ब्रैट विल एक्सेप्ट द सब्सिडी और नॉट, ठीक है, ये हमने लॉजिक समझा। अब इसी से रिलेटेड हम वो देखेंगे कि भाई उसे सब्सिडी कितनी मिलेगी, यानी कि किस पॉइंट पर कितनी सब्सिडी, क्वांटिटी ऑफ सब्सिडी कैसे हम डिसाइड करेंगे।
कि उसे कितनी सब्सिडी मिली है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए आई हैव टू रीड्रॉ द कर्व एंड लेट मी redraw the curve once again and we will see how the amount of subsidy is being determined, जिसको हम पिगुवियन सब्सिडी बोलेंगे, जिसको हम पिगुवियन सब्सिडी बोलेंगे। Well, this is the marginal benefit curve, and this is the marginal private cost, and this is the marginal damage. This is the marginal damage. This is the marginal damage, and this is the marginal damage. So this would be the marginal social cost, and this is the marginal social cost, which is nothing but marginal private cost plus marginal damage. This is the E0 point that the Brad will be producing at E0. अब देखो बेटे, जो पिगुवियन सब्सिडी है, जैसे पिगुवियन टैक्स था, पिगुवियन टैक्स क्या था कि द टैक्स एट द सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट, that means the tax should be equal to the socially desired damage at the socially desirable level of output, and that much tax is to be imposed. That is being suggested by the ACPIGU. ACPIGU ने कहा था, जो हम टैक्स का एग्जांपल हमने पढ़ा था, कि आपने टैक्स कितना इम्पोज करना है, कि भाई टैक्स इतना इम्पोज करना है कि जो सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट पर जितना मार्जिनल डैमेज होगा उतनी ही क्वांटिटी का टैक्स लगाना है। तो सेम गोज फॉर द सब्सिडी, कि what will be the quantum of subsidy? The quantum of subsidy is, per unit, the quantum of subsidy will be the amount of marginal damage that is being caused at the socially desirable level of output. Did you get it? Hello students, क्या ये समझ में आया है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। थोड़ा जल्दी बोल दिया करो भाई, मैं 3-4 बार पूछता हूँ तब यस सर इतनी देर बाद आता है किसी एक का। क्या सो रहे होते हो क्या क्लास में लॉग इन करके? दाएं बाएं टीवी चला रखा है? सो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। तो अब सवाल यह है कि अब इस केस में सब्सिडी अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? तो सब्सिडी कैसे डिसाइड होगा? क्वांटम ऑफ सब्सिडी, भाई ये लेवल ऑफ आउटपुट है क्यू स्टार, सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें तो इस लेवल पर इतना डैमेज हो रहा है ए बी के जितना, ये जो मैंने ब्लैक शेड किया है, विच इज इक्वल टू दिस पॉइंट E1 and this is let me call it as J point, E1 J point। तो ये सब्सिडी होगी।
इसको ही अगर हम देखें तो ये जो बॉक्स है यहाँ से ये और ये यहाँ से ये इस क्वांटिटी के लिए अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये J पॉइंट, ये H पॉइंट और ये K पॉइंट, तो इसका मतलब एक तरीके से H K J E1 ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये पिगुवियन सब्सिडी है, ये पिगुवियन सब्सिडी है, पिगुवियन सब्सिडी, ये पिगुवियन सब्सिडी, यानी कि इतनी सब्सिडी ब्रैट एक्सेप्ट करेगा कि क्यों, क्योंकि Q0 आउटपुट से Q स्टार आउटपुट तक उसे लाना है। Q स्टार क्या है? सोशली डिजायरेबल आउटपुट, सोशली डिजायरेबल आउटपुट, और इस सोशली डिजायरेबल आउटपुट तक आने के लिए this much subsidy is to be provided by the government or being offered by the government to the brat to convince him that he should produce at Q star. Is that okay? And he should not produce at Q0. Is that okay? Hello? Yes, sir. समझ में आया आप लोगों को? तो ये पिगुवियन सब्सिडी है। इससे रिलेटेड अब तक जितना समझाया, इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। यस, अगर किसी स्टूडेंट ने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो वो सवाल पूछ सकता है। हेलो, 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 चलिए, इफ देर आर नो क्वेश्चंस देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इज, देखो अब हमने पब्लिक रिस्पॉन्सेज पढ़ा टू द एक्सटर्नैलिटीज, जिसमें दो मेन चीज़ें हमने पढ़ी, टैक्सेस और सब्सिडीज। अब इससे आगे का नया टॉपिक हम पढ़ते हैं कि और गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट जो पब्लिक रिस्पॉन्स हो सकता है, एक है रेगुलेशन, कि एक तरीके से रेगुलेट करे मार्केट को कि कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। ये एक तरीके का रेगुलेशन इस चीज़ का लेकर आना। तो इस चीज़ का रेगुलेशन आने के लिए कैसे करेंगे, लेट अस सी कि देखते हैं। अब जब रेगुलेट करेगी तो क्या रेगुलेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कि गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करती है एक्सटर्नैलिटीज़ को कम करने के लिए, क्या वो रेगुलेशन काम करेगा। अब जैसे हमने टैक्स का एग्जांपल लिया, तो क्या टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो काम करेगा। जो पिगुवियन टैक्स तो बता दिया, पिगू ने तो बता दिया टैक्स, अब हम उससे आगे की बात हम कर रहे हैं। तो लेट अस सी दैट। सपोज करते हैं कि इफ़ देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स, अब हमने तो एक एग्जांपल लिया ब्रैट, कि सिंगल जब ब्रैट है प्रोड्यूसर, उस केस में तो काम कर रहा है टैक्सेशन या गवर्नमेंट का रेगुलेशन थ्रू टैक्सेशन। बट सपोज करो इफ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स आर देयर, will that the same technique or the tax imposed by the government is going to work or not? That is what we are supposed to see. That is what we are supposed to see. If there are multiple polluters, whether the taxation policy by the government will work or not. Policy by the government will work or not. That is what we are supposed to see. Suppose there are two different producers, or you can say the polluters. So polluter one's marginal benefit is this one. Suppose MB1
and polluter second's marginal benefit curve is something like this. Let us assume this is the marginal benefit curve of polluter second. There are two polluters in the economy, and the polluters are having different benefits. Well, the taxation policy is going to work in that case or not. This is what we are supposed to see. Now let's see. This is the marginal private cost in both the firms are same. So let me draw it with this curve. This is MPC. MPC is nothing but marginal private cost to the firm 1 as well as marginal private cost to the firm 2. So that means both the firms are having the same cost function. दोनों ही फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक जैसी आती है, तो हम ऐसा मानकर इसमें चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन. Suppose if the tax is being imposed, then there will be a problem. There will be a problem. Let us see what problem would be. What kind of problem would that be? Now tax is to be imposed in the private cost, and the cost of production of both the firms will be something like MPC plus T. You can see MPC plus T. This is the cost after tax. After tax. Well, if this is the cost, now see what is the problem. What kind of problem exists is that the firm 1 is going to produce at this point. This is let me mark it as Q1, and firm 2 will produce this much. Let me mark it as Q2. Whereas initially they both were producing at this point. Let me mark it as not where the output of firm 1 and firm 1 not and firm 2 not, they are the same. Not are the same. Okay. So you can see that the firms are producing the both firms are being producing different outputs, and there are two different outputs that are socially desirable. अब इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण समस्या ये हुई कि जो फर्म 1 है, ठीक है, जो फर्म 1 है, फर्म 1 को तो क्या है, आउटपुट सिर्फ इतना कम करना पड़ा, ठीक है, और फर्म 2 को जो आउटपुट है वो इतना ज़्यादा कम करना पड़ा. दे बोथ हैव टू कट डाउन देयर आउटपुट. अब ये एक तरीके से आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि क्योंकि सेम तरह का पोल्यूशन दोनों कर रहे थे और दोनों को डिफरेंट बेनिफिट्स है, कॉस्ट दोनों को सेम पड़ रही थी, तो फर्म 2 को आउटपुट कम करना पड़ा और फर्म 1 को आउटपुट बढ़ाना पड़ा. तो जिसके कारण क्या है कि रेगुलेशन करने से क्या होगा, सभी फर्म्स को सेम अमाउंट कट नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोपोर्शनल रहेगा. किसी फर्म को ज़्यादा आउटपुट कट करना पड़ेगा, किसी को कम, जैसा हमने देखा. तो जो रेगुलेशन है दैट विल आल्सो क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ
the problem in justifying the taxes or any government regulation that is being imposed. इससे रिलेटेड क्या ये समझ में आया बेटे आप लोग? हेलो, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्या इससे रिलेटेड कोई सवाल है? हेलो, नो सर। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है जितना अब तक करा है इससे रिलेटेड? तो ठीक है, फिर ये हमारा फर्स्ट यूनिट आई होप हमारी ख़त्म हो गई है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।